begins. Newly elected members to take oath or affirmation. Secretary General, please. Ms. Julie Tiwari, who stands elected from Baramulla, the constituency of Jammu and Kashmir, will now take oath or affirmation. Ms. Julie Tiwari, please. Madam, do you want to take oath or affirmation? Oath, please. In which language would you like to take oath? In Hindi, please. मैं जूली तिवारी जो 33वीं युवा संसद की लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी, देश की संप्रभुता और एकता को बनाए रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। धन्यवाद। Mr. Ashish Kumar, who stands elected from Thiruvananthapuram, Parliamentary Constituency of Kerala, will now take oath or affirmation. Mr. Ashish Kumar, please. Sir, do you want to take oath or affirmation? Oath, please. In which language would you like to take oath? In English, please. I, Ashish Kumar, having been elected a member of lower house of 33rd Youth Parliament, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established. I will uphold the sovereignty and integrity of India, and I will faithfully discharge my duties upon which I am about to enter. Thank you. Ms. Pratna Sharma, who stands elected from Varanasi, the Parliamentary Constituency of Uttar Pradesh, will now take oath or affirmation. Ms. Pratna Sharma, please. Madam, do you want to take oath or affirmation? Oath, please. In which language would you like to take oath? In Sanskrit, please. अहं प्रार्थना शर्मा या 63 इति युवा सदस्य लोकसभा सदस्य निर्वाचितम् अभवत्। ईश्वरस्य शपथं गृहीतवती यत् अहं विद्या स्थापितं भारतस्य संविधान प्रति सदा श्रद्धा निष्ठा च पालनीयासि, देशस्य संप्रभुता एकता च स्थापितं करिष्यामि तथा यं पदं गृहीष्यामि तेषां कार्यवतां श्रद्धापूर्वकः निर्वहणं करिष्यामि। धन्यवाद। Honorable members, today I'm extremely shocked to inform you that our devoted, sincere and honorable colleague, Mr. Suresh Chandra, member of Beed constituency, is now no more. His service and sacrifice will remain a source of inspiration for all of us. His sudden demise
Honorable Speaker Ma'am, late Suresh Chandra was worthy and parliamentarian. His sudden demise created a vacuum which can never be filled. I should like to extend my deep condolence to his family. दिवंगत सांसद श्री सुरेश चंद्रा जी का अचानक ही काल कल्पित हो जाना न केवल हमारे लिए बल्कि हमारे देश व समाज के लिए भी काफी विचलित करने वाला तथा दिल को झंझोड़ देने वाला है। एक समाज सेवी, देश प्रेमी और कुशल सांसद के रूप में उनका योगदान बेशक अविस्मरणीय है। उनके न रहने से हमने एक अच्छे एवं सच्चे जन नेता को खोया है, जिसकी स्थान पूर्ति मुझे यहाँ वर्षों वर्षों तक संभव दिखाई नहीं देती। मैं स्वर्गीय सुरेश चंद्रा जी के शोक संतप्त परिवार को अपनी संवेदनाएं भेजने में खुद को एवं अपने दल को सम्मिलित करता हूँ। Now, I request the House to stand in silence for a while as a mark of respect to the departed soul. Secretary General, please convey the message of condolence to the Bebrate family. Yes, madam. Prime Minister may introduce the new ministers to the House. Honorable Speaker Ma'am, with immense pleasure, I am going to introduce the three new Ministers of the House. My colleagues are Ms. Shifa Khanum as the Minister of Tourism, Ms. Subra as the Minister of Tribal Affairs, Mr. Sanskar as the Minister of Civil Aviation. We now move on to the question hour. Question number 101. Ms. Srishti, you may ask your question, please. माननीय अध्यक्ष महोदया, क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपया करेंगे क्या सरकार ने वैश्विक महामारी के दौरान विद्यालय बंद हो जाने के कारण विद्यार्थियों को हुए शैक्षिक नुकसान के संबंध में कोई आकलन किया है? यदि हाँ, तो तब संबंधित ब्यौरा क्या है? सरकार ने महामारी के दौरान विद्यालय बंद हो जाने के कारण शैक्षिक नुकसान की भरपाई करने हेतु क्या कदम उठाए हैं? Honorable Education Minister, Ms. Akansha Mishra, please. माननीय अध्यक्ष महोदय, कोविड-19 महामारी के प्रसार के कारण छात्रों की सुरक्षा के लिए एहतियाती तौर पर राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रीय यूटी के स्कूलों को बंद कर दिया गया। इससे प्री स्कूलों से लेकर
कि दिव्यांग छात्रों के प्रवेश के लिए विद्यालयों में क्या विशेष व्यवस्था की गई है? माननीय शिक्षा मंत्री जी महोदया, देश के सभी विद्यालय जैसे केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय में दिव्यांगों के प्रवेश हेतु 3% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। मुझे बताने में खुशी हो रही है कि इन दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क, जी हाँ, निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। साथ ही साथ सभी विद्यालयों द्वारा इन वर्ग के विद्यार्थियों के लिए आवागमन हेतु रैंप की व्यवस्था की गई है। माननीय अध्यक्ष महोदया, इन सभी दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए विशेष प्रकार के शौचालय भी बनवाए गए हैं। हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास के तहत इन जरूरतमंदों के लिए हमेशा प्रयासरत है। धन्यवाद। Now, question number 1 or 2. Ms. Dipali, for your question, please. Honorable Speaker Madam, through you, I want to ask our Honorable Defense Minister that China and USA have very advanced technology and powerful weapons which helps them to counter powerful country. But the independence of 75 years, India has scarcity of advanced technology and powerful weapons. Why? Minister of Defense, Ms. Shivangi, please. Honorable Speaker Ma'am, first of all, good morning to all of you. Today, I would like to thank the member of opposition party as he raised such an important question in the parliament. Madam Speaker, for this, I would like to say that DRDO project, such as the Light Combat Aircraft Tejas, Nag Missile, Long Range Surface to Air Missile project, Early Warning project and the Agni 5, which have been delayed by many years due to some cost overruns, are now going to be invented. Yes, I accept that till now the defense system was quite less in the terms of new technology. But our defense committee promised each and every member that India is going to invent the best missile. We must not forget that India is one of the countries of new defense system in both line, air and ground. At all, we are not going to work at a chalta attitude. At last, I would like to say that मैं भारत बरस का हरदम अमित सम्मान करती हूँ, यहाँ की चांदनी मिट्टी का ही गुणगान करती हूँ। मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की, मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की। तिरंगा हो कफन मेरा, यही अरमान करती हूँ, यही अरमान करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। Now, question number 1 or 3. Ms. Simran, for your question, please. मैडम, मैं माननीय ग्रामीण विकास मंत्री जी से यह जानना चाहूंगी कि कब भूमंडलीकरण के बावजूद शहरों और गांवों के बीच की खाई घटने के बदले और चौड़ी ही हुई है, इसे कम करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? गांव में सड़क, शिक्षा, बिजली और स्वास्थ्य विकास हेतु सरकार क्या उपाय कर रही है? I request the Minister of Rural Development to give the reply. माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके द्वारा संसद को यह बताना चाहूंगी कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी सरकार द्वारा आधारभूत संरचना पर विशेष बल दिया जा रहा है। हमने 2 माह पूर्व ही राज्य सरकार को 32,000 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज के तहत आर्थिक सहायता दी है और ग्रामीण सड़कों को मुख्य सड़कों से जोड़ने हेतु कई कदम उठाए हैं। इस क्षेत्र में सड़क एवं परिवहन मंत्रालय का योगदान भी काफी सराहनीय रहा है। और जहां तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात है, तो हमने गांव में आधुनिक शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु कई कदम उठाए हैं। प्रत्येक सब डिवीजन में कम से कम एक महिला कॉलेज की स्थापना तथा प्रखंड स्तर पर कंप्यूटर लैबोरेटरी युक्त मॉडल विद्यालय की स्थापना शामिल है। धन्यवाद। Any supplementary question? Yes, Mr. Utkarsh Kumar. महोदया, मैं माननीय मंत्री जी से यह प्रश्न करना चाहता हूं कि गांव के विकास हेतु तरह तरह की योजनाएं बनाई गई हैं,
जैसे इंदिरा आवास योजना, प्रधानमंत्री सड़क योजना इत्यादि। बावजूद इसके गांव का विकास क्यों नहीं हो रहा है और सही मायनों में धरातल पर विकास कब तक दिखाई देगा? The minister, please. महोदया, मैं आपके द्वारा संसद को यह बताना चाहूंगी कि सरकार के द्वारा जो तरह तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं, उन योजनाओं के कार्यान्वयन पर विशेष बल दिया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े लघु उद्योगों को बढ़ावा देकर उन्हें रोजगार का इंतजाम किया जा रहा है। जल्द ही गांव में आधारभूत संरचना जैसे विद्यालय, सड़क, बिजली, सिंचाई आदि सुविधाएं मुहैया कराकर उन्हें विकास की मुख्य धारा में शामिल किया जाएगा और इसे हम शीघ्र संपूर्ण देश में मिशन मोड के तौर पर लागू करेंगे, जिसके फायदे भी शीघ्र नजर आएंगे। धन्यवाद। Now, question number 104. Mr. Shrivansh Chandra, please. Honorable Speaker Ma'am, through you, I want to know from the Finance Minister that many thousand crore rupees are deposited in the bank of foreign countries as the black money. So, in this matter, what steps are taken by the government to take out their money from the bank of foreign countries and use in our country, India? Finance Minister, Ms. Tanusha, please. Honorable Speaker Madam, through you, I want to greet everyone present here. And I also want to thank the opposition party member for raising such an important question in the parliament. For this, I want you to know that we have made a lot of good plans to bring back the black money back from the foreign country. We have made plans to know how this black money was deposited and by whom this black money was deposited. Then we will talk to these countries and try to take our money back. After that, we will expose those people who were involved in these things and give them very harsh punishment. Thank you. Now, question number 105. Ms. Ihina Roy, please. माननीय अध्यक्ष महोदया, क्या माननीय रेल मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगी कि वर्तमान समय में लंबी दूरी की कितनी ट्रेनों में बैटरी कार की व्यवस्था नहीं है? खान पान एवं स्वच्छता के स्तर को बेहतर बनाने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है? माननीय रेल मंत्री जी, कृपया उत्तर देने का कष्ट करें। स्पीकर मैडम, वर्तमान समय में लंबी दूरी तय करने वाली कुल 55 ट्रेनों में बैटरी कार की व्यवस्था नहीं है। महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य महोदया एवं पूरे सदन को यह भरोसा दिलाना चाहती हूँ कि रेल मंत्रालय ने कैग की रिपोर्ट पर गंभीरता से ध्यान दिया है। जिन ट्रेनों के खानों में कॉकरोच एवं कीड़े पाए जाने की पुष्टि हुई है, उन ठेकेदारों का टेंडर तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है। महोदया, मैं आपको एवं पूरे सदन को यह बताना चाहती हूँ कि रेल मंत्रालय ने एक मिशन की शुरुआत की है, जिस मिशन में सभी यात्रियों की यात्रा सुखद एवं मंगलमय होगी। हमने खान पान की जांच करने वाले रेल कर्मचारियों एवं अधिकारियों को सख्त हिदायत दी है ताकि वह भोजन से संबंधित सामग्री का अच्छी तरीके से जांच एवं पड़ताल करें। प्रत्येक यात्री अपनी यात्रा के दौरान SMS एवं अन्य डिजिटल माध्यम से रेल मंत्रालय को अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है एवं उससे संबंधित अधिकारी उन शिकायतों का तुरंत समाधान करेंगे। धन्यवाद मैडम। Question number 106. Mr. Abhinav Kumar, please. Honorable Speaker Madam, will the Minister of Culture be pleased to state that how the Government of India plans to celebrate Azadi Ka Amrit Mahotsav and EBSB, Ek Bharat Shresth Bharat? Minister of Culture, Mr. Kumar Kaushal, please. Speaker Madam, Azadi Ka Amrit Mahotsav is an initiative of Government of India to celebrate and commemorate 75 years of independence. And in this iconic week, we are our ministry is going to celebrate the iconic week under the Azadi Ka Amrit Mahotsav.
Any supplementary question? Yes, Mr. Ramanandan. मैडम, मैं ये मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के अंतर्गत शैक्षिक संस्थानों में किस तरह से लागू किया जा रहा है। क्या इसे लागू किया भी जा रहा है या फिर ये कागज से शुरू हुआ कार्यक्रम कागज पे ही खत्म होके रह जाएगा? क्या ये कागज में ही सिमट के रह जाएगा? Minister of Culture, Mr. Kumar Kaushal, please. मैडम, हमारी सरकार EVSP अर्थात एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत हाई स्कूल से लेके उच्च शैक्षिक स्थानों में विविध गतिविधियां पूरे मनोयोग से चला रही है। इसमें भाषा संगम के तहत संविधान में अधिसूचित 22 भाषाओं में 100 वाक्य सभी विद्यार्थियों को सिखाने का एक विशेष प्रयास किया जा रहा है ताकि इस विविधता को सम्मान देते हुए लोगों में एकता को और भी मजबूती प्रदान की जा सके। साथ ही नई शिक्षा नीति के तहत प्राथमिक स्तर पे मातृभाषा में भी पढ़ाई हो इसका भी इंतजाम किया जा रहा है। EVSP कार्यक्रम की एक खास विशेषता ये भी है कि विविध राज्यों के विद्यार्थी को साझेदार राज्य अर्थात पेयर स्टेट के इतिहास, संस्कृति, ज्ञान विज्ञान के बारे में जानने का एवं समझने का एक सुनहरा अवसर भी प्राप्त होता है, जिससे लोगों के मन में भारत का गौरवशाली एवं गरिमा को और अधिक जान के लोगों के मन में देशभक्ति की भावना को और भी बढ़ावा मिलता है। धन्यवाद। No more supplementary question, please. Now the question hour is over. Honorable Arpit, do you want to speak anything? जी महोदय, 10 दिन पहले मेरे साथ विशेषाधिकार हनन की घटना घटी है। मैं अपने संसदीय क्षेत्र निजामाबाद में आमरण अनशन पर बैठे किसानों से मिलने जा रहा था। मेरे कुछ समर्थक भी मेरे साथ थे। वहां किसान अपनी जमीनों को भूमाफियाओं से वापस लेना चाहते थे, मगर रास्ते में ही निजामाबाद के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक मुझे जबरदस्ती आगे बढ़ने से रोक दिए। विरोध करने पर मेरे समर्थकों पर लाठियां तक बरसाई गई और अनशन स्थल पर जाने से रोक दिया गया। क्या आपने इसकी लिखित सूचना मुझे दी है? जी महोदया, आज सुबह 10 बजे ही इसकी सूचना लिखित रूप में दे दी गई है। यह सूचना अभी तक मेरे पास नहीं है। मैं आपको आश्वस्त कराना चाहती हूँ कि सूचना मिलते ही नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई कर दी जाएगी। धन्यवाद महोदया। Now, papers to be laid. Honorable Minister of Corporate Affairs, Miss Anushka, please. Honorable Speaker Madam, I beg to lay on the table a copy each of the following papers under subsection 1 of Article 628A of the Companies Act 1956. First, review by the government on the working of the State Farm Corporation of India Limited, New Delhi for the year 2020-21. Second, annual report of the State Farm Corporation of New Delhi for the year 2020-21, along with the audited accounts and the comments on the Comptroller and Auditor General thereon. Secretary General will now convey message from the upper chamber of Youth Parliament. Madam, I have to report the following message received from the Secretary of the Upper Chamber of Youth Parliament. In accordance to the provision of the Rules of Procedure and Conduct of the business in the Upper House of Youth Parliament, I am directed to enclose the copy of the Rights of Persons with Disabilities Bill 2021, which has been passed by the Upper House at its sitting held on 30th October 2021. Secretary General to lay on the table a copy of the bill passed by the upper chamber.
I lay on the table of the House a copy of the Rights of Persons with Disabilities Bill 2021 as passed by the Upper House. Honorable members, today we have immense pleasure to have amidst us a parliamentary delegation from the United States of America. They are veteran parliamentarian and socialist politician. I have great pleasure in extending our warm and hearty welcome to His Excellency, Miss Michelle Bennett, Speaker of USA Parliament, Miss Catherine Baldwin, Leader of Opposition Party, and Mr. Christopher S. Murphy, Commerce Minister of USA. अतिथि देवो भव हमारी संस्कृति है. I, on behalf of the honorable parliamentarians, welcome and greet all of them from the core of my heart. I wish you all to have a very happy and pleasant stay in our country. We also convey our warm greetings and best wishes through them to their government and the friendly people of USA. Now, let us take up the calling attention motion. I have received a notice from the following members. Mr. Devansh, Leader of Opposition Party. Ms. Ridhima Pandey, Member of Opposition Party. And Ms. Shrija Singh, also Member of Opposition Party. Leader of Opposition Party, Mr. Devansh, will call the attention of Honorable Home Minister towards deteriorating flood situation in Assam, Bihar and Uttarakhand. Mr. Devansh Pandey, please. महोदया, सर्वप्रथम बिहार एवं देश के विभिन्न भागों में आई हुई बाढ़ की गंभीर स्थिति पर मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करने का जो आपने अवसर प्रदान किया है, उसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। महोदया, पिछले महीने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश व जम्मू कश्मीर में हुए भूस्खलन एवं असम, बिहार सहित देश के विभिन्न भागों में आई हुई बाढ़ की गंभीर स्थिति पर मैं अविलंब सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। दूरदर्शन पर जो प्रलयकारी दृश्य देखा वह दिल दहला देने वाला था। इसमें जो हजारों लोग मलबे में दबकर काल कल्पित हो गए, यह कल्पनीय है। महोदया, मैं आपके माध्यम से अविलंब सरकार से पूछना चाहता हूं कि मौसम विभाग की पूर्व सूचना के बावजूद सरकार ने सावधानी क्यों नहीं बरती? माननीय गृह मंत्री प्लीज। माननीय अध्यक्ष महोदया, मुझे उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर के भयंकर त्रासदी एवं असम, बिहार सहित देश के अन्य भागों में आए बाढ़ की विभीषिका पर काफी दुख है। और जहां तक प्रश्न है मौसम विभाग के पूर्वानुमान का, वह पूर्वानुमान वर्षा की थी, ना कि बादल के फटने या ग्लेशियर के सैलाब का। महोदया, यह त्रासदी अकल्पनीय थी, किंतु मानव कितना ही विकास का दावा क्यों न कर ले, प्रकृति के आगे बेबस। महोदया, मैं सदन को आश्वस्त कराना चाहूंगी कि सभी तीर्थ स्थानों पर मौसम विभाग एवं राष्ट्रीय प्रबंधन बोर्ड के सामंजस्य से एक ऐसी तंत्र विकसित की जाएगी जिससे इस प्रकार के अप्रत्याशित घटना एवं ऐसी भयंकर त्रासदी से बचा जा सके। धन्यवाद। Now, Miss Ridhima Pandey, please. महोदया, बाढ़ व भूस्खलन के कारण जान माल का खतरा पैदा हो गया है और लोग बेघर हो चुके हैं। लोगों के समक्ष भूखमरी, बीमारी और यहाँ तक कि पशुओं के लिए चारे की समस्या पैदा हो गई है। मैडम, सरकार त्रासदी में मलबे के नीचे दबे व्यक्तियों को निकालने के लिए कोई ठोस प्रयास नहीं कर रही है तथा राहत एवं बचाव कार्य में शिथिलता बरत रही है। एक सप्ताह बीतने के बाद भी राहत एवं बचाव कार्य शुरू नहीं किए गए। मैडम, सरकार लोगों की जान माल की रक्षा के लिए क्या करने जा रही है तथा मृत एवं घायल लोगों को सरकारी मुआवजा कितना और कब देगी, यह अभी तक स्पष्ट नहीं है। इसीलिए जनता में भय का माहौल है। अतः
मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगी कि इन क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्य शुरू करने में इतनी देरी क्यों हो रही है। धन्यवाद महोदय। मिस श्रीजा प्लीज। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सरकार गरीबों, भूखों, पीड़ितों को अनदेखा करने वाली है। केवल कॉर्पोरेट जगत के बड़े व्यापारियों एवं मुनाफाखोरों को ही संरक्षण देती है। गरीब एवं संसाधन विहीन लोगों के सुख आखिर कौन लेगा? सत्ता में रहने के नाते यह इस सरकार का नैतिक दायित्व है कि वह आम जनता की हिफाजत करे। इस समय मुझे धूमिल की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं जो मैं आप सभी के समक्ष पेश करना चाहूंगी कि एक आदमी रोटी बेलता है और दूसरा आदमी रोटी पकाता है, मगर एक तीसरा आदमी भी है। जी हाँ, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न पकाता है, वो सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछती हूँ वह तीसरा आदमी कौन है? मगर अफसोस, मेरे देश की संसद मौन है, मेरे देश की संसद मौन है। हम सरकार से मांग करते हैं कि अविलंब युद्ध स्तर पर राहत एवं बचाव कार्य में तेजी लाए। माननीय गृह मंत्री कृपया उत्तर देने का कष्ट करें। महोदय, हमारी सरकार माननीय सदस्यों की चिंता से अवगत। माफी चाहूंगी, किंतु फिलहाल मेरे पास इसकी पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं है। मेंबर्स, प्लीज मेंटेन द decorum of the house. संबंधित विभागों से सूचना आ जाने के बाद माननीय सदस्यों को इसका लिखित उत्तर भेज दिया जाएगा। धन्यवाद। मुझे लगता है कि सरकार के स्पष्टीकरण एवं आश्वासन के बाद सदन को आश्वस्त हो जाना चाहिए। Now, adjournment motion. Miss Aditi Dubey will now beg for leave to move the adjournment motion. Miss Aditi, please. Madam, I beg for leave to move the adjournment motion. Leave is granted. Honorable member, please. Madam, I would like to draw your kind attention on the verses. सखी सैया तो बहुत ही कमाते हैं, महंगाई डायन खाई जाते हैं. Madam, this is not a normal folk song, but it is the reflection of the pains and sufferings of the common mass of our country due to unprecedented price hike for which the government is absolutely responsible. The poor section of our society is in agony and on the verge of death due to hunger. Millions of our countrymen are not be able to provide foods to their family members. Due to this, there may be dissatisfaction and revolt leading to various social evils. The government is fully responsible for raising price of almost required commodities of daily use like milk, petrol, diesel, gas, etc. Madam, the rate of petrol and diesel has soared up to ₹100 per litre and the list is endless. Madam, how will the poor section and the middle class of our society survive? I feel stunned to think the government seems to be totally unconcerned and has given a deaf ear to this important issue of our country. Keeping in mind the importance of common men, the House should think deeply on this issue. This issue must be openly discussed in the House. हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए. सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि इसे सूरत बदलनी चाहिए, सूरत बदलनी चाहिए. माननीय अध्यक्ष महोदय, आम आदमी महंगाई के बोझ तले कुछ इस तरह दब गया है कि उसका जीना मुहाल हो गया है. इधर बहरी और संवेदन शून्य सरकार सोई हुई है. हालात तो कुछ इस कदर हैं कि रोम चल रहा है और नीलो बंशी बजा रहा है. आम आदमी दाने दाने का मोहताज हो गया है. महंगाई इस कदर बढ़ गए हैं कि कुछ क्षेत्रों के लोग आत्महत्या को विवश हो रहे हैं तथा कुछ एक गरीबों ने विवश होकर अपने बच्चों को भी बेचने जैसा जघन्य कृत्य किया है. पर फिर भी सरकार द्वारा खोखले वादों के सिवा गरीबों को कुछ भी उपलब्ध नहीं हुआ है. जब गरीबों की आह उठती है तो स्वर्ण महल भी उस आह की ज्वाला में नेस्ता नाबूद हो जाते हैं.
इसी परिप्रेक्ष्य में मैं एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरे अंतर्मन की पीड़ा एक क्षण भी सरकार को सत्ता में नहीं देखना चाहती। ऐसी सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसे नैतिकता के आधार पर स्वतः त्याग पत्र दे देना चाहिए। धन्यवाद। माननीय वित्त मंत्री मिस तनुषा प्लीज। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों की भावनाओं का सम्मान करती हूँ। महंगाई का जिक्र किया गया है कि 1 रुपए में 16 सेर गेहूं मिलते थे। तब भी लोग महंगाई का रोना रोते थे और आज जो लोग सत्ता से बाहर है वह सदन के अंदर इस महंगाई के मुद्दे पे हो हल्ला कर रहे हैं। उन्हीं की गलत नीतियों के कारण लोगों को महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। लोक लुभावन कार्यक्रमों को वोटों की राजनीति के तहत शुरू करके इन लोगों ने देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है। अध्यक्ष महोदया, सरकार अपनी विफलता को विपक्ष पर मढ़ रही है। माननीय मंत्री जी, प्रेमचंद्र का जमाना परतंत्र भारत का था। स्वतंत्र भारत में लोक कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था हमारे संविधान के द्वारा दी गई है। अतः यह आपका दायित्व बनता है कि महंगाई रूपी दानव को काबू में रखें। सदस्य महोदया, कृपया शांत हो जाएं एवं मंत्री जी को अपना वक्तव्य देने दें। हमने मुद्रास्फीति को नियंत्रण में करने की हर संभव प्रयास किए हैं। रेपो दर कम किया है। गेहूं, चावल, दलहन एवं चीनी के निर्यात पर रोक लगाया है। आयात पर कर समाप्त किया है। बड़े व्यापारियों के गोदामों पर छापा मारने की आग्रह राज्य सरकारों से की गई है। राज्य सरकारें भी महंगाई रोकने हेतु हर संभव प्रयास कर रही है। धन्यवाद। काबिले तारीफ है आपका प्रयास महोदया। एक तरफ लोग भूखे मर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर एफसीआई के गोदामों में गेहूं सड़ने के समाचार आ रहे हैं। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों को बेतहाशा बढ़ाकर आपने गरीबों का खून चूसने का काम किया है। यही है ना आपके प्रयासों की नजीर? इस सरकार ने दूध मुहे बच्चों के भी दूध छीन लिए हैं। दूध जैसी आवश्यक पेय पदार्थ पर भी जीएसटी लगा दिया गया है। आपके राज में एक ओर गरीबों के बच्चे को दाने दाने के मोहताज है, वहीं दूसरी ओर धनी लोगों के कुत्तों को भी दूध मिलता है। आपके राज में स्वानों को मिलता दूध भात भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर जाड़े की रात बिताते हैं। महंगाई और बेरोजगारी, इसी मुद्दे को लेकर आम जनता ही आपको सत्ता से रुखसत करेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके राज्य में मोटरसाइकिल पर चलने वाले और 2 मंजिलों के पक्के मकानों में रहने वाले बीपीएल सूची का मजा ले रहे हैं और गरीब बेचारा डूबता हुआ टुकुर टुकुर देख रहा है। हम प्रधानमंत्री से महंगाई पर बयान की मांग करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सदन की चिंता से पूरी तरह सहमत हैं। मैं सदन को आश्वस्त कराना चाहती हूँ कि हमारे प्रयासों से जल्द ही महंगाई पर काबू पा लिया जाएगा। हाल के वर्षों में मानसून की बेरुखी के कारण खाद्यान्न, दलहन, फलों एवं सब्जियों के उत्पादन में कमी के कारण ऐसे हालात उत्पन्न हुए हैं। दूसरी ओर यूक्रेन युद्ध और अन्य अंतर्राष्ट्रीय वजह से कच्चे तेलों की कीमत में बढ़ोतरी हुई है। कर संबंधी नियमों में ढील दी गई है। मुख्यमंत्री की बैठक बुलाकर महंगाई पर नियंत्रण के उपायों पर चर्चा की गई है। दिसंबर तक सब रख के सबके सहयोग से महंगाई पर काबू पा लिया जाए। Honorable Minister of Agriculture, Ms. Nitya, to introduce the bill. Now, the question is that the bill be introduced, Agriculture Reform Amendment Bill 2022. Those who are in favor of it will say aye. Aye. Those against it will say no. No. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Leave is granted. Honorable Minister of Agriculture, please. Madam, I introduce the bill. Now, the House will take up the consideration
of Right to Health Guarantee Bill 2022. Minister of Health, Ms. Khushi, please. महोदया, कोविड जैसी महामारी को ध्यान में रखते हुए मैं सदन में स्वास्थ्य का अधिकार गारंटी विधेयक 2022 का प्रस्ताव पेश करती हूँ। इस बिल का उद्देश्य सभी उम्र के लिए स्वास्थ्य और कल्याण के उच्चतम संभव स्तर को प्राप्त करना है। अतः सभी नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सुविधा को सुनिश्चित करना अतः सम्मान पूर्वक जीवन जीने के लिए अनुकूल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के मानक की सभी लोगों तक पहुंच सुनिश्चित करना इस बिल का मुख्य उद्देश्य है। यह विधेयक लोगों को अपने जेब से स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भुगतान करने के वित्तीय परिणामों से बचाता है और लोगों की गरीबी में ढकेले जाने जैसे जोखिम को भी कम करता है। महोदया, स्वास्थ्य का अधिकार गारंटी विधेयक 2022 के मुख्य प्रावधान इस प्रकार है। पहला, संपूर्ण देश के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य बोर्ड होगा जिसका मुख्यालय नई दिल्ली होगा। दूसरा, बोर्ड प्रभारी रूप से काम कर सके इसके लिए हर राज्य में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक क्षेत्रीय कार्यालय व जिला स्तर पर एक हेल्थ सेंटर होगा। तीसरा, पीपी मॉडल यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत निजी क्षेत्रों के आधारभूत संरचना निर्माण में मदद ली जाएगी। अतः ग्रामीण क्षेत्रों में निजी भागीदारी से अस्पताल खोलने पर विशेष सब्सिडी भी दी जाएगी। चौथा, रियायती दर पर दिए गए जमीन पर बने हॉस्पिटल में स्थानीय लोगों इलाज बिल्कुल निःशुल्क किया जाएगा। जी हाँ, स्थानीय लोगों इलाज बिल्कुल निःशुल्क किया जाएगा। पांचवा, इस विधेयक में यह प्रावधान किया गया है कि प्राइवेट हॉस्पिटल संचालक को हर हालत में मरीज की डेड बॉडी उनके परिजन को देनी होगी। छठवां, इस बिल में यह भी प्रावधान किया गया है कि प्राइवेट हॉस्पिटल को महामारी के समय में सरकार अपने नियंत्रण में ले सकती है। सातवां, आयुष्मान योजना को विस्तारित करते हुए सभी जरूरतमंदों को स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाएगा। आठवां, डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की नियुक्ति उच्च मानदंडों के साथ की जाएगी एवं उन्हें 5 वर्ष की सेवाएं गांवों में भी देनी होगी। अतः महोदया, मैं आपके माध्यम से अपने साथियों को बस इतना ही कहना चाहूंगी, हमारे देश के सर्वांगीण विकास के लिए हर व्यक्ति का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है और स्वस्थ मस्तिष्क ही किसी भी देश के विकास को सुनिश्चित करता है अथवा उसकी गारंटी लेता है। इसीलिए स्वस्थ रहेगा इंडिया तभी आगे बढ़ेगा इंडिया। धन्यवाद। मेंबर ऑफ ऑपोजिशन मिस रिद्धिमा प्लीज। मैडम, हमारे अस्पतालों की स्थिति बहुत दयनीय है। ऐसे अस्पताल हैं जिनमें डॉक्टर नहीं है और न ही पिछले कुछ वर्षों से मेडिकल स्टाफों की नियुक्ति की गई है। दूसरे अस्पतालों में डॉक्टर प्रायः लंबी छुट्टी पर चले जाते हैं। क्या शर्म की बात है। मुझे लगता है कि स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। कोविड-19 के दौरान स्वास्थ्य अधिकार की अक्षमता और कुव्यवस्था के कारण लाखों देशवासियों को अपनी जान गंवानी पड़ी। अतः इस बिल में जो प्रावधान किए जा रहे हैं वे कहीं से भी स्वास्थ्य के अधिकार को सुनिश्चित करता हुआ प्रतीत नहीं होता, बल्कि इससे कॉर्पोरेट क्षेत्रों को फायदा पहुंचता हुआ प्रतीत होता है। मैडम, अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगी, शांति नहीं तब तक जब तक सुख भागना नर का सम हो। शांति नहीं तब तक जब तक सुख भागना नर का सम हो। ना तो किसी को बहुत अधिक और ना तो किसी को कम हो और ना तो किसी को कम हो। धन्यवाद महोदया। मेंबर ऑफ ऑपोजिशन मिस श्रीजा प्लीज। मैडम, यह सरकारी सदस्य बड़ी ही चतुराई से अपनी बातों को हम सभी के समक्ष रख रहे हैं, किंतु हमारे नेताओं द्वारा उठाई गई आपत्तियों पर जरा भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। सरकार यह बता रही है कि इस बिल के पास होने पर एकाएक हजारों अस्पतालों का निर्माण
महोदया, मैं अपने विपक्ष के सदस्य से पूर्णतः सहमत हूँ। जब तक स्वास्थ्य के अधिकार को मौलिक अधिकार रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा, तब तक इस प्रकार का कानून जनता के साथ छलावा मात्र है। अतः मैं आपके माध्यम से इस प्रयास का पुरजोर विरोध करता हूँ। धन्यवाद। मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स मिस्टर काशा प्लीज। महोदया, माननीय विपक्षी सदस्य सदन को मुख्य मुद्दे से भटकाना चाहते हैं। मैडम, सरकार यह प्रयास कर रही है कि देश के अमीर, गरीब, ग्रामीण, शहरी सभी लोगों को अच्छी से अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त हो। यही इस बिल की मूल आत्मा है। मैडम, इससे हमारे संविधान को लोक कल्याणकारी स्वरूप एवं और अधिक मजबूती मिलेगी। महोदया, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन का ध्यान कुछ प्रमुख बिंदुओं की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ। कोविड-19 के बाद हमारे देश की पहली जरूरत है सभी देशवासियों को अच्छी से अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना एवं ऐसी किसी भी महामारी जैसी चुनौतियों से हम लड़ पाए, इसीलिए हम इस बिल को लागू करना चाहते हैं। अभी भी देश के आबादी का एक बड़ा तबका स्वास्थ्य सुविधाओं से महरूम है। मैडम, एक स्वस्थ आबादी से ही देश को विकास की ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा सकता है। इस विधेयक के द्वारा सभी जरूरतमंद नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा के तहत लाया जाएगा एवं जिससे अब आम नागरिक भी अच्छे से अच्छे, ध्यान दीजिएगा हुजूर, अच्छे से अच्छे अस्पताल में 5 लाख तक का, जी हाँ 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज करवा पाएंगे एवं साथ ही साथ पीपीपी मॉडल से ग्रामीण क्षेत्र की एक बड़ी आबादी अस्पताल से लाभान्वित हो। मैडम, स्वास्थ्य की गारंटी अधिनियम वस्तुतः हमारे देश के स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए मील का पत्थर साबित होगी। सच्चे अर्थों में समावेशी विकास की अवधारणा को सुनिश्चित किया जाएगा। महोदया, मैं समझती हूँ कि इस बिल के प्रभाव काफी दूरगामी एवं परिणाम अत्यंत प्रभावशाली होंगे। अंत में मैं सदन के सिर्फ विरोध के लिए विरोध करने वाले सदस्यों से कहना चाहूंगी कि हो के मायूस योना शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है, सूरज सा निकलते रहिए, सूरज सा निकलते रहिए। एक ही पांव पर ठहरोगे तो थम जाओगे हुजूर, धीरे धीरे ही सही पर राह पर चलते रहिए। जी हाँ, राह पर चलते रहिए ताकि मंजिल मिल सके। धन्यवाद। ऑनरेबल लीडर ऑफ ऑपोजिशन मिस्टर देवांश पांडे प्लीज। अध्यक्ष महोदया, बहुत खूब। अगर ये कवि सम्मेलन होता तो मैं सत्ता पक्ष की सुंदर कविता के लिए तालियों की फरमाइश जरूर करता, किंतु यहाँ कहना चाहूंगा कि शब्दों की जादूगरी और चतुराई जरा देखें तो बड़े ही प्यार से पुचकार कर हलाल करते हैं। महोदया, सरकार का यह प्रयास आम जनता का ध्यान महंगाई, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचारी, कालाबाजारी जैसे बुनियादी समस्याओं से भटकाने का है, जिसका मैं पुरजोर विरोध करता हूँ। महोदया, सरकार जब भी कोई रचनात्मक कदम उठाती है, विपक्ष का नेता होने के नाते मैंने उसका हमेशा समर्थन किया है, किंतु आज सत्ता पक्ष के साथियों से मेरा निवेदन है कि समस्याओं का हल प्रस्तुत करें, मामलों को जलेबी की तरह गोल गोल ना घुमाएं। काम करना ही है तो जनहित में कार्य करें। इस महत्वपूर्ण विधेयक को संसद में लाने से पहले राज्यों से व्यापक विचार विमर्श नहीं किया गया है, जो कि लोकतांत्रिक मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। महोदया, जब तक सरकार हमारी इन आपत्तियों को दूर नहीं कर देती, हम इस बिल को अपना समर्थन नहीं देंगे और इसका पूर्ण विरोध करेंगे। Honorable Prime Minister, please. Honorable Speaker, ma'am, our party become in power by the support of common public, and now then, when who have eagerly been support towards our government for development of all, yes, for Sabka Saath, Sabka Vikas, who have been denied from the period of 75th of our independence. And now when our government provide a health facility to all, then the opposition become hurdle in our way. Madam, our government believe that this bill will be milestone for health requirement to all. Madam,
Therefore, I humbly request to all the members of the House to support the Right Health Guarantee Bill 2022, listening the voice of their precious soul and help the government to pass the bill. Thank you. Now the question is to ensure health for every citizen of all the backgrounds, all the communities, all urban and rural areas, all the languages speaker and for all the states. Right to Health Guarantee Bill with the vision Sarve Bhavantu Sukhinah, Sarve Santu Niramaya, and with the mission of health for all to be taken into consideration or not. Those who are in favor of it will say aye. Aye. Those against it will say no. No. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. Now the question is, clause 2 to 6 stands the part of the bill. Those who are in favor of it will say aye. Aye. Those against it will say no. No. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. Clause 2 to 6 stands the part of the bill. Now the question is that clause 1, the enacting formula and the title stands the part of the bill. Those who are in favor of it will say aye. Aye. Those against it will say no. No. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. HRD Minister, please. Madam, I move the bill to be passed. Now the question is that the bill be passed. Those who are in favor of it will say aye. Aye. Those against it will say no. No. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Motion is adopted. The bill is passed. Now the House is adjourned to meet again tomorrow at 11 a.m.